welcome to the reading session of the book Know Your Balance Sheet. Last time we saw some components of trading and profit and loss account. Today we'll see some more components, starting with depreciation. So depreciation is calculated on fixed assets on the basis life of the fixed asset. There are two types of depreciation, WDV method and SLM method. WDV, that is written down method, written down value method. In this method, every year certain percentage of value will be reduced from such assets. Straight line basis is a method of calculating depreciation and amortization. The process of expensing an asset over a longer period of time. It is calculated by dividing the difference between an asset's cost and its expected salvage value by the number of years it is expected to be used. One can claim additional depreciation at 20% if specified conditions are fulfilled. Depreciation is a non-cash item expense. It means there is no cash outflow in this expense. Bank always adds it back to net profit in calculating the loan eligibility of the borrower. In case of a private limited company, there are two types of depreciation. One is as per the Companies Act and another is depreciation as per Income Tax Act. In case of a private limited company, depreciation is charged in the books of accounts as per the Companies Act. The rate of depreciation as per Companies Act is charged on the basis of life of asset. Depreciation as per income tax is deducted while computing income tax. It means depreciation as per Companies Act will be added back to net profit of the company, and depreciation as per income tax will be deducted to calculate income tax. The logic of depreciation is that if you purchase machinery and the life of such machinery is say 6 years, so such cost can be allocated during the life of the asset instead of claiming the cost in 1 year, since the benefit of such asset is reaped for a period of 6 years. Over to you, sir. Thank you, madam. Thank you and good evening all. My name is C. Hanumantrao Chaudhary. I am also author of this book, Know Your Balance Sheet. Good evening and welcome all. And thank you, Anjali madam. I am C. Hanumantrao Chaudhary. I am also author of Know Your Balance Sheet book. Today we are going to start reading the depreciation. Every day our session is first half an hour for share market and half an hour for book reading. Due to some quotation urgency meeting, today we are only reading the book. So it's a 1 hour session for book reading session. Today we are going to talk about the depreciation. Depreciation से क्या होता है हम लोग देख लेंगे. Depreciation जो है वो फिक्स एसेट के ऊपर कैलकुलेशंस होता है based on the life of the assets. Depreciation क्यों निकलता है? जैसे आपने कुछ assets परचेज किया, जो asset है उसका जो लाइफ है इट्स मोर देन 1 ईयर. कौन सा भी एक्सपेंसेस इसका मोर देन 1 ईयर उसका बेनिफिट आपको मिलता है तो उसको अमोर्टाइज करना पड़ता है. जैसे आपने मशीनरी लिया, उसका लाइफ रहते है 5 to 6 ईयर. उसका बेनिफिट जो है वो एक ही साल में आपको नहीं मिलता है. इसका बेनिफिट विल गेटिंग फ्रॉम 5 to 6 ईयर. नेक्स्ट 5 to 6 ईयर यू आर गेटिंग द बेनिफिट. उसके लिए डेप्रिसिएशन जो है वो एक ही साल में एसेट का जो कॉस्ट है वो एक ही साल में डेबिट नहीं करते हुए उसको अमोर्टाइजेशन ओवर ए पीरियड ऑफ उसका जो लाइफ है उसको अमोर्टाइजेशन होता है. ये डेप्रिसिएशन का लॉजिक है. डेप्रिसिएशन में दो टाइप का डेप्रिसिएशन होता है. एक है WDV मेथड, दूसरा है SLM मेथड. WDV मेथड क्या होता है? WDV मेथड इज द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. इस मेथड में एक परसेंटेज अमाउंट्स माइनस करते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज आपका मशीनरी है, मशीनरी
आपको एवरी ईयर 15% माइनस होता है। सपोज 1 करोड़ आपका मशीनरी वैल्यू है, फर्स्ट ईयर में आपने सपोज बिफोर सितंबर मशीनरी परचेज किया, फर्स्ट ईयर में 15% उसका माइनस होता है, मीन्स 15 लाख एज ए डेप्रिसिएशन उसका माइनस होता है। बाकी जो 85 लाख रुपीज है वो आपका WDV होता है। वो 85 लाख नेक्स्ट ईयर में वो 15% ऐसे रिड्यूस होते होते उसका लाइफ खत्म हो जाते हैं। इसको WDV मेथड बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में टोटल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ उसका जो लाइफ है वो डिवाइडेड करके SLM मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होता है। SLM मेथड जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये फॉलो होता है। WD मेथड इन जनरल बाकी प्रोपरेटर पार्टनरशिप फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा WD मेथड फॉलो होता है। आजकल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आया हुआ है, उसके लिए आपको मैनुअल कैलकुलेशंस करना जरूरी नहीं है, बट आपको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो बहुत सारे लोगों को, अकाउंटेंट लोगों को जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं डेप्रिसिएशन का एंट्री भी नहीं आते हैं। उसके लिए एज ए अकाउंटेंट आपको डेप्रिसिएशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसका एंट्री कैसे होता है, दिस इज वन ऑफ द फाइनलाइजेशन एंट्री। जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनलाइजेशन करता है तो डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द फाइनलाइजेशन एंट्री है। उसके लिए इसमें बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। आपको डेप्रिसिएशन का एंट्री, डेप्रिसिएशन के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आप कुछ मशीनरी के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी ले सकते हैं। कुछ कंडीशन आप सेटिस्फाई किया तो आप 20% आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलता है। सपोज आप 1 करोड़ का मशीनरी परचेज किया तो फर्स्ट ईयर में आपको 15% तो डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स आपको मिलना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी कुछ कंडीशन आपने सेटिस्फाइड किया तो आपको 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन भी उसी साल में मिलता है। मीन्स उसी साल में आपको 35% डेप्रिसिएशन आपको क्लेम आप कर सकते हैं उसमें। ये भी बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता है, उसके लिए ये भी आपको ध्यान देना है। आपका जो 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन है आप प्रॉपर क्लेम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये जो डेप्रिसिएशन है ये नॉन कैश आइटम एक्सपेंसेस है, मीन्स ये तो डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होता है, बाकी सब एक्सपेंसेस वो होता है वो सब कैश आइटम होता है। मीन्स एक तो कैश में खर्चा हुआ रहता है, नहीं तो बैंक से खर्चा हुआ रहता है, नहीं तो बिल आया रहता है, उसको आप इन फ्यूचर में पे करना रहता है। बट डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ है वो उस ईयर में कैश एक्सपेंसेस नहीं होता है, इट इज ओनली अमोर्टाइजेशन। आपको जो असेट्स है उसका अमोर्टाइजेशन होके डेप्रिसिएशन P&L को डेबिट होता है। आपका एक्सपेंसेस कैश के रूप में इधर खर्चा नहीं होता है, दिस इज ओनली अमोर्टाइजेशन। उसके लिए बैंक क्या करेगा, जब आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपका जब एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन होता है, मीन्स आपका नेट प्रॉफिट कितना है। सपोज आपका नेट प्रॉफिट है 20 लाख रुपीज़, आपका डेप्रिसिएशन है 15 लाख रुपीज़। बैंक जब नेट प्रॉफिट का जब उनका कैलकुलेशंस करना रहता है, मीन आपका EMI का कैपेसिटी एनालिसिस करने के लिए जब वो कैलकुलेशन करना चाहता है तो उस टाइम पे आपका जो डेप्रिसिएशन है वो एड बैक होता है। मीन्स इन दैट केस योर नेट प्रॉफिट विल बी 35 लाख रुपीज़ फॉर बैंक लोन पर्पस, नॉट 20 लाख रुपीज़। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब आप बैंक को लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक कभी कभी डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं करा हुआ रहता, आपका प्रॉफिट को ऐड नहीं होता है, तो आप उसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, मेरा डेप्रिसिएशन भी आप ऐड करके मेरा लोन के एलिजिबिलिटी आप निकल के मेरे को लोन दे सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उधर दो टाइप का डेप्रिसिएशन होता है। एक होते डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, उसके लिए अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेशंस होता है, अलग उसके लिए रेट्स रहते हैं, वो रेट के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन बुक्स में एंट्री करना पड़ता है। जो प्रॉपरेटरी और पार्टनरशिप फर्म में जो काम करके जब आप प्राइवेट लिमिटेड में एज ए अकाउंटेंट ज्वाइन हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो इनकम टैक्स का रेट है उसी रेट के स्टाइल पे बुक्स में एंट्री करता है, बट दैट इज रॉन्ग। इनकम टैक्स एक्ट के लिए अलग है और कंपनी एक्ट के लिए आपको एज पर कंपनी एक्ट का जो डेप्रिसिएशन है वही आपको बुक्स में एंट्री करना है। बाकी जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपको कब कैलकुलेशंस करना है, जब आपको कंपनी का टैक्स कैलकुलेशंस करना होता है। जब आप कंपनी का टैक्स कैलकुलेशन करते टाइम में कंपनी एक्ट का जो डेप्रिसिएशन है वो ऐड होता है और जो इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन है वो माइनस होता है।
फॉर एग्जांपल अभी विल टेक द सेम एग्जांपल, आपका जो नेट प्रॉफिट है 20 लाख रुपीस, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी एक्ट आपका 15 लाख रुपीस है, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स आपका सपोज 20 लाख रुपीस है, तो आपका नेट प्रॉफिट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स मीन्स इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए आपका जो प्रॉफिट है वो होता है 20 लाख रुपीस आपका नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी एक्ट 15 लाख रुपीस, 35 लाख रुपीस और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 20 लाख रुपीस। मीन्स आपका जो नेट प्रॉफिट है फॉर इनकम टैक्स पर्पस इट इज 15 लाख रुपीस नॉट 20 लाख रुपीस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। किसी को भी कुछ क्वेरीज है रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, आप सेशन के बारे में सेशन होने के बाद में आप क्वेरी रेज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आपको जानना बहुत जरूरी है। एज ए अकाउंटेंट, एज ए ओनर, आपको कुछ भी इसका रिलेटेड क्वेरीज है, आप सेशन के बाद में ऐसे भी ये वी हैव 1 आवर टाइम दिस सेशन, आपको लास्ट 10-15 मिनट्स हम आपके लिए क्वेरी के लिए रखेंगे। कुछ भी इसका रिलेटेड क्वेरीज है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरे को पूछ सकते हैं। डेप्रिसिएशन का जो लॉजिक है हम लोग पहले बताया, क्योंकि वो 1 ईयर का एक्सपेंसेस नहीं होता है, दिस इज अमोर्टाइजेशन ओवर ए पीरियड ऑफ, उसका जो लाइफ रहते हैं वो ज़्यादा 5 to 6 मोर देन 1 ईयर रहते हैं, उसके हिसाब से उसको अमोर्टाइजेशन करते हैं, उसके लिए कुछ परसेंटेज फिक्स किया हुआ है, वो एवरी ईयर हम अमोर्टाइजेशन करते करते उसको P&L डेबिट करके वी आर फाइंडिंग द नेट प्रॉफिट। अंजलि मैडम, यू कैन रीड द बैंक चार्जेस। Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू। So next is bank charges. Bank charges are the charges levied by the bank for its banking services. Always check if unnecessary charges are debited by the bank. Loan processing charges for term loan taken from the bank for the purchase of fixed assets must be debited to the respective fixed asset account and not as an indirect expense, that is revenue expenditure. You can always bargain with the bank for the processing charges. If you are a good customer, the bank can give you concession. Calculate your monthly CC and term loan interest and make comparison of your calculation with the bank statement. If you find any difference, then make an application to bank for the reversal of the excess amount. Yes, thank you madam. Over to you, sir. बैंक चार्जेस, बहुत सारे लोगों का इसके बारे में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो भी बैंक चार्जेस बैंक डेबिट करता है तो वो करेक्ट है, उसमें कुछ रॉन्ग नहीं है, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग। जब भी आप बैंक चार्जेस कैलकुलेशंस आप बैंक से जब आप डेबिट पड़ा हुआ रहते तो आपको खुद को भी एक बार उसको चेक करना है वो बैंक चार्जेस किसके लिए पड़ा हुआ है। बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट कोई चेक करता ही नहीं है, बाकी एक्सपेंसेस सब लोग चेक करते हैं, बट बैंक चार्जेस बैंक इंटरेस्ट जो रहता है वो उनको ऐसा माइंड सेट हुआ है, वो उसमें 100% वो करेक्ट रहते हैं, उसमें क्या देखना रहता है। एक बार लोन ले लिया, एवरी मंथ दे आर डेबिटिंग इंटरेस्ट एंड जो भी डेबिट होता है आप उसको P&L को डेबिट करते जाते हैं। एक्चुअली मेरे ही केस में एक बार ऐसे हुआ था कि मेरा चेक रिटर्न हुआ, उसमें मेरा भी गलती नहीं है ना क्लाइंट का गलती है, वो गलती था बैंक का क्लियरेंस सिस्टम का, उसमें लिख के आया था, बट सिस्टम को ये पता नहीं है। सिस्टम को एक बार उनको बता के रखा हुआ है, जैसे वो चेक रिटर्न हुआ आप उसको चार्जेस डाल दो, गलती किसका है उनको नहीं बताया हुआ सिस्टम। उसके लिए एज ए अकाउंटेंट, एज ए ओनर आपको ये देखना है जब भी आपको बैंक चार्जेस पड़ता है तो कौन सा गलती से वो बैंक चार्जेस पड़ा हुआ, गलती आपका है क्या, गलती बैंक का है क्या, आपका कस्टमर का गलती, ये जो भी आपका देखना है, उसके बाद आपको उसका डिसाइड करना है। सपोज कोई बैंक आपको गलत से चार्जेस लगाया तो आप उसको एप्लीकेशन करके वो रिवर्स कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने एप्लीकेशन लिखा उनको, उसका हमने रिवर्स भी करके लिया, बिकॉज दैट इज़ नॉट आवर मिस्टेक्स। बहुत सारे लोग जब बैंक को लोन के लिए जाते तो उनको ऐसे लगता है कि मेरे को लोन मिला, दे आर वेरी हैप्पी, बाकी चार्जेस कितना लिया, इंटरेस्ट कितना लिया लगा रहे, उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। एक्चुअली इट्स नॉट करेक्ट। जब भी आप बैंक लोन लेने के लिए बैंक को जाएंगे, ये आपका राइट्स है, दिस इज द वन ऑफ द बिजनेस का जो टेक्निक्स है। आपको जब भी आप बैंक में जाएंगे आपको सबसे पहले ये पूछना है, नॉट ओनली आप बिजनेसमैन, इवन आप जब हाउसिंग लोन के लिए भी आप बैंक के लिए जाएंगे तो आप सबसे पहले उनको ये पूछना है आपको
आपका प्रोसेसिंग चार्जेस कितना है, आपका लीगल चार्जेस कितना है, आपका इंटरेस्ट कितना है, और बाकी कुछ हिडन चार्जेस आपका है क्या, ये सब चीज़ें पूछ के आपको लोन लेना है। बहुत सारे लोग 90% लोग इसके बारे में ध्यान देता नहीं है, क्योंकि उनको लोन मिला, दे आर वेरी हैप्पी। बट जो स्मार्ट कस्टमर है, जो स्मार्ट बिजनेसमैन है, वो कभी भी आप बैंक से बार्गेनिंग कर सकते हैं। जो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, सपोज आपको बैंक मशीनरी के लिए आप लोन के लिए गया, उसका जो प्रोसेसिंग चार्जेस है, अभी मैंने बहुत सारे अकाउंटेंट को देखा कि वो जो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस है वो दे आर डेबिटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्चुअली जब आप लोन ले रहे हैं वो रिलेटेड टू मशीनरी है। जब वो रिलेटेड टू मशीनरी होता है, दैट इज नॉट ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मीन्स आपको फिक्स असेट्स में ऐड करना है। बहुत सारे लोग एवरी ईयर मिस्टेक्स होता है, कुछ फैक्ट्री सेट के लिए लोन लिया रहता है, तो जब तक वो काम चालू होता है तब तक वो एक्चुअली दैट इज पार्ट ऑफ उसका जो भी लोन प्रोसेसिंग चार्जेस रहता है, इंटरेस्ट रहते हैं, वो सब दैट इज पार्ट ऑफ द फिक्स असेट। बट बहुत सारे लोग उनका लॉजिक क्लियर नहीं होते, उनके लिए दे आर थिंकिंग दैट इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्चुअली आपको ये देखना है, जब भी लोन प्रोसेसिंग चार्जेस होता है, वो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस कैश क्रेडिट के लिए है या टर्म लोन के लिए। सपोज जो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आपका कैश क्रेडिट के लिए रिलेटेड है, आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के डाल सकते हैं। सपोज जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो सपोज फिक्स एसेट है, मीन्स आप कुछ मशीनरी लेने के लिए, फैक्ट्री सेट के लिए आपने उसको लोन लिया था, वो प्रोसेसिंग चार्जेस पे करते टाइम में वो कंसर्न असेट को आपको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ये एज ए अकाउंटेंट ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपका क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग भी बढ़ेगा और आपका अकाउंटिंग परफेक्ट होगा। बैंक से आप बार्गेनिंग कर सकते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि प्रोसेसिंग चार्जेस में भी बार्गेनिंग होता है। प्रोसेसिंग चार्जेस में भी आप सपोज आपका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम परफेक्ट है और आपका सिविल रिपोर्ट भी एकदम परफेक्ट है, तो आपको बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस में भी डिस्काउंट देता है। सपोज इफ दे आर चार्जिंग 1%, दे कैन चार्ज यू 0.5%, 0.75%। बड़े अमाउंट लोन में अमाउंट में ये भी बहुत बड़ा होता है, उसके लिए आपको बार्गेनिंग करके प्रोसेसिंग चार्जेस डिसाइड करना, बैंक से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जब लोन लेता है, सीसी लेते हैं, टर्म लोन लेता है, एज ए बिजनेसमैन उसका कभी इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस नहीं करता है। जैसे आप लोन लेंगे, हम लोग सजेस्ट करेंगे, गूगल में आपको ईएमआई कैलकुलेटर भी मिलता है। आप कैश क्रेडिट के लिए भी आपको ईएमआई कैलकुलेटर मिलता है और टर्म लोन के लिए भी आपको कैलकुलेटर मिलता है। ये दोनों आपको डाउनलोड करके मंथ टू मंथ आपका इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन आपको मंथ टू मंथ कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। इसमें बैंक से भी गलती होने का चांसेस होता है। अभी एक कंपनी में वो भी हुआ था, एवरी मंथ दे आर चार्जिंग 50,000 एक्स्ट्रा। एक कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया था, उधर इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि एक साल में बहुत सारे टाइम आपका बैंक इंटरेस्ट चेंज होता है। बट सिस्टम में सपोज अपडेट नहीं किया, वो ओल्ड रेट ऑटोमेटिक सिस्टम आपका कैलकुलेशन करते होता है। बट आपको ये देखना है जो इससे इंटरेस्ट रेट रिवाइज हुआ उसके हिसाब से आपका लोन का ईएमआई और लोन का पेमेंट जा रहे क्या नहीं जा रहे, ये भी ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करना है। सपोज कुछ डिफरेंस है, आप बैंक को एक लेटर लिख के उसका आप रिवर्स कर सकते हैं। अंजलि मैडम नेक्स्ट। Yes, sir. So next we are going to see electricity charges. Electricity charges are an important cost in case of manufacturing companies. Always pay the bill in time to get additional benefits offered by the electricity department. Taking action on the following lines can also help control the electricity bill. Compare the monthly electricity expenses with the last month's sales to current month's sales. If the electricity bill has increased, then find the reason for such an increase. For example, a manufacturing company was facing the problem of high electricity charges. When we asked the reason to the production department, they gave a suggestion that if we install an electronic device, we can save around 10 lakh rupees on electricity bill. Take all possible measures to save the electricity bill.
Always make the electricity charges provision in the books and then make the payment. Next point is manufacturing companies have high electricity bills. Implementing new technologies can help them to reduce electricity charges. And then pay the electricity charges in time to save the penalty. Over to you, sir. Yeah, thank you, madam. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, बाकी आपका बिजनेस का रेंट, सैलरी, उसके बाद में सबसे बड़ा जो एक्सपेंसेस होता है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स होता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में सपोज आपका ड्यू डेट है पेमेंट करने का 10 तारीख, सपोज आप उसको 5 तारीख को पे किया, कुछ डिस्काउंट्स दिया हो रहे थे, उसमें सपोज 500 आपको डिस्काउंट मिलता है, और बहुत सारे लोग उसको टाइम पे नहीं पे करते। सपोज उसका 5 तारीख रहा तो आपने 6 तारीख को पे करेंगे, एक दिन के लिए आपने जो डिस्काउंट है वो आपका मिस होता है। उसके लिए आपको ये देखना है जो भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वो आपको इन टाइम पे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो भी आपको देखना है। बहुत सारे टाइम अकाउंटेंट लोगों का बहुत अदर काम की गड़बड़ पे वो इन टाइम पे पेमेंट्स नहीं होता है, तो आपको एक दिन के लिए एक्स्ट्रा 500,000 रुपीज़ आपको पेनल्टी पे करना पड़ता है। उसके लिए जो भी ड्यू डेट से उधर बिफोर भरा तो कुछ अलग रेट रहते हैं, आफ्टर भरा तो कुछ अलग रेट, थोड़ा आपको पेनल्टी भी लगेगा। उसके लिए ये कोशिश रखना है। इवन आपका घर का भी बिल आप पे करते टाइम में सपोज आप ड्यू डेट से पहले भरा तो आपको 50 to 100 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिलता है। दिस इज स्मॉल एक्सपेंसेस ऑल्सो सेव योर कंपनी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपको मंथ टू मंथ चेक करना है, क्योंकि बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर रीडिंग गलत हो सकता है। मेरा ही केस में लॉकडाउन में हुआ था, ऑलमोस्ट डबल मेरा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आया था, क्योंकि उस टाइम पे वो लोग मीटर रीडिंग नहीं किया था, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एकदम वो एस्टिमेट बेस पे लगा कि बिल भेजा वो, बाद में हम लोग उसको करेक्शन करके लिया हुआ। जिससे बैंक चार्जेस को ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देता है, ऐसे बहुत सारे लोगों का ये भी इंप्रेशन है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में भी बराबर रहते, वो परफेक्ट होके आता है। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में भी बहुत बार आपको एडिशनल चार्जेस, एडिशनल पेनल्टी, फाइन, ऐसे कुछ भी उसमें लगा के आपको बिल आ सकता है। उसके लिए आपको ये देखना है, एवरी मंथ टू मंथ आपको कंपैरिजन करना है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो प्रॉपर आ रहा है क्या नहीं आ रहे। सपोज एवरेज बिल आपका 2000 आ रहे हैं, तो उस टाइम पे नेक्स्ट मंथ में सपोज 4000 आ गया, तो आपको ये देखना है उसका रीजन क्यों आया, मेरा क्या सेल्स बढ़ा, क्या मेरा इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमशन ज़्यादा हुआ क्या, ये सब चीज़ें आपको देख के उसका आपको चेक करके, सपोज ज़्यादा हो तो एप्लीकेशन करके आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जब हम लोग ऑडिट करा था, ये पॉइंट्स अपने को आ गया, उधर बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कंज्यूम हो रहा था। तो हम लोग एक मीटिंग लिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, बिकॉज वी आर नॉट ए टेक्निकल पीपल। हम लोग उनको क्वेश्चन पूछा, अपना अभी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इतना मंथली हेवी आ रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। उसमें एक इंजीनियर अपने को, प्रोडक्शन इंजीनियर, ऐसे सजेशन दिया, सर जैसे अपना मशीन चालू होता है तो एकदम वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होता है अपना, जैसे कंज्यूम होता है तो वो ऑटोमेटिक बिल बढ़ जाता है। उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऐसे आता है कि वो ज़्यादा मटेरियल कंज्यूम नहीं होते हैं, बट अपना मशीनरी स्टार्ट होता है, उसके लिए अराउंड कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ अपने को खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग उनको इमीडिएट कंपनी को गाइड किया, आपको 10 लाख रुपीज़ तो आपका इसे 2 महीने में रिकवर हो जाएगा, जो भी उसका रिलेटेड आपका नया टेक्नोलॉजी है आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करके लीजिए, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बच जाते हैं। इससे बहुत सारी कंपनी का इश्यू होता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एवरी मंथ टू मंथ बढ़ता रहता है, बहुत सारे लोग उसको ध्यान नहीं देता है। उस जगह पे आप सोलर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उधर कॉस्ट कंपेरिजन्स नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में भी कंट्रोल नहीं होता है, तो आपको उधर बहुत बड़ा एक्सपेंसेस का आपको ज़्यादा से ज़्यादा बियर करना पड़ता है। ये जो बुक है, ये बुक स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए लिखा हुआ है, और अकाउंटेंट के लिए कैसे काम करना है, एज ए ओनर, एज ए बिजनेस ओनर आपको क्या देखना है, कैसे आपका छोटा छोटा एक्सपेंसेस आप छोटा छोटा ध्यान देके आपका बिजनेस का प्रॉफिट आप कैसे बढ़ा सकते, ये बुक में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उसमें ही लिखा हुआ है। आप इसको सपोज फॉलो किया, 100% आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा, नेट प्रॉफिट में भी आपको बहुत सारे फर्क पड़ सकते हैं।
अब जैसे बताया हुआ, जैसे आपने कुछ इलेक्ट्रिकल जो भी नया टेक्नोलॉजी यूज़ करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आप कम कर सकते हैं, और इन टाइम पे पे करने से आपका ज़्यादा से जो पेनल्टी रहता है, अभी बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि 10 तारीख को उसका ड्यू डेट रहता है, तो 11 तारीख को पे किया रहता है, बट दे आर पेइंग एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़। 1 डे डिले हुआ, आपको 1000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ये आपको ध्यान में रख के काम करना है। अंजलि मैडम, ओवर टू यू। Yes, thank you. You can Next, we read, are going to. uh, sorry madam, you can read continuously madam for 10 minutes, and then we'll explain, that will be better what I think. Okay, okay. Yeah. So, next 2-3 topics I should cover. Yeah, you can cover up to end also, no problem. Okay, sure. Up to end of this. Okay, fine. So, we are going to have a look at the other components now. First is now insurance. Insurance is an expense. It may be of any of the following: the insurance of keyman, or insurance of employee, or insurance of machinery, or insurance of vehicle, etc. Treatment of insurance in the books of accounts. For example, if an insurance of 10,000 rupees is taken after September, then 5,000, that is half the amount, will be current year insurance expense, and 5,000 will be treated as prepaid insurance expense under current asset. This must be bifurcated as mentioned, and next year transferred to the current year insurance expense account. Next is ESI and PF contribution of the employer. ESI and PF contribution of the employer will be considered as an expense if it is paid before the due date of filing the return of income under the Income Tax Act. ESI and PF of employee will be paid on or before the due date of such ESI and PF Act. Otherwise, such ESI and PF of employee will be treated as an income, and we need to pay income tax on it. We always advise you to pay all ESI and PF of employees before the due date of the respective act to avoid income tax. Business owners should also abide by the ESI and PF Act when the company crosses the prescribed employee limit as mentioned in the said act. Next is interest on cash credit. Interest on cash credit is an indirect expense. It is wise to take cash credit only if required for business working capital or for payment of government dues if you have not paid in time. The interest on government dues is more than 18%, and such interest is also not deductible as an expense in case of direct tax. One can claim interest on cash credit if it is used for payment of government dues. So, it is advisable to pay bank interest instead of interest on delayed payment of government tax. Cash credit is a sensitive loan if you have utilized it 100% and not repaid the amount. One must use cash credit account as a current account, and at least in 1 year, your cash credit account should show debit balance in books of accounts. It means you have repaid all your cash credit loan during the year, which is a good sign. If not, it means you have shortage of working capital for the entire year. It indicates your cash flow management is not good and there is no profit margin in the business. We advise fast debtor recovery. Next is interest on term loan. Interest on term loan means the interest on the loan taken for acquiring fixed assets. Such an interest is capitalized. Interest accrued till the date of commercial production on such term loan is added to the respective fixed asset account. Interest accrued after commercial production is treated as a revenue expense and debited to profit and loss account. Next is office expenses. This is one of the most misused expense account head. When the accountant is not sure of where to debit a particular expense, he or she simply puts it under the office expense account. This must be avoided. For this, the accountant and the owner must analyze the expenses
and debit them to the profit and loss account. According to the income tax rule, any expense that has a distinct nature and is more than rupees 5,000 must be put under a separate expense head. Office expenses are those indirect expenses related to office and administration purpose. Next is petrol expenses. Petrol and diesel expenses incurred for all business related travel and commute fall under this expense head. Personal expenses of the directors on petrol and diesel are not allowed under this head. Remember to take photocopies of the petrol and diesel bills, as these bills must be kept for 8 years and the ink will disappear after some months. Printing and stationery. Office printing and stationery fall under this expense head. Always take 3 quotations for comparison of prices. Check the quality of printing before finalizing the printer. Compare printing and stationery expense of last year with current year with respect to the last year's sale and current year's sale. Analyze the differences. If the rise in cost is not justified, then change the printing and stationery supplier. Next is salary. Salary is one of the highest expenses in all companies. The owner or HR head should decide the right salary for right person. The company should get more than 4 times the output of what it is paying as a salary. Then only company can earn profit. The company must deduct the TDS on salary after crossing the specified limit mentioned in the Income Tax Act. Deduct professional tax once salary has crossed the prescribed amount limit. Salary and wages of the employees who are directly connected with the manufacturing are treated as direct expense, while the salaries paid to the employees in sales, accounts and administration departments, etc. are treated as an indirect expense. So a small quote, beware of little expenses. A small leak can sink a great ship. Over to you, sir. Thank you, madam. Insurance. इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंसेस. इसमें कीमन इंश्योरेंस हो सकता है, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस हो सकता है, मशीनरी का भी इंश्योरेंस हो सकता है. जैसे इंश्योरेंस जो रहता है उसका जो प्रीमियम रहता है वो ईयरली इंश्योरेंस रहता है, उसका प्रीमियम ईयरली रहता है. सपोज आप 1 अक्टूबर में अपनी 10,000 प्रीमियम आपने पे किया, उसको नेक्स्ट ईयर सितंबर तक उसका पीरियड रहता है. बहुत सारे अकाउंटेंट इधर भी बहुत मिस्टेक्स होते हैं. एवरी ईयर हम लोग उनको गाइड करते हैं, जो अपनी अक्टूबर टू मार्च तक जो आप पे करेंगे इंश्योरेंस, उसको उस ईयर का एक्सपेंसेस बोल के ट्रीट करना है. तो नेक्स्ट ईयर आप अप्रैल टू सितंबर तक जो पे करेंगे वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, वो करंट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है. दैट एक्सपेंसेस इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर. वो जो एक्सपेंसेस है वो नेक्स्ट ईयर का रिलेटेड है, उसको आपको एक्सपेंसेस में डेबिट नहीं करना है. आपको करंट ईयर में कितना करना है, सिर्फ 5,000 पे कर इनकम एक्सपेंडिचर बोल के आप 5,000 ही आपको क्लेम करना है. बाकी 5,000 आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस बोल के आपको करंट असेट्स में डेबिट करना है. बट इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक्स होता है, डायरेक्टली 10,000 इंश्योरेंस एक्सपेंसेस बोल के आप डेबिट पीरियड को डेबिट होता है. दैट इज एक्चुअली रॉन्ग. आपको प्रॉपर बाइफर्केशन करना है, वो पीरियड वाइज करना है. सपोज आपका इंश्योरेंस एक्सपेंसेस आपने जनवरी में पे किया, तो जनवरी फरवरी मार्च का जो एक्सपेंसेस है वो करंट ईयर में आता है. बाकी 9 मंथ्स का एक्सपेंसेस आपका नेक्स्ट ईयर इसमें रिलेटेड रहते हैं. उसके लिए हम लोग उसको प्रीपेड में एक्सपेंसेस बोल के करंट असेट में डालने का, नेक्स्ट ईयर में फिर आप उसको कंसर्न एक्सपेंसेस में आप उसको रिवर्स कर सकते हैं. ये बहुत सारे अकाउंटेंट लोग मिस्टेक्स होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है. ये जो चैप्टर से अकाउंटेंट लोगों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आपका इसका रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है, सेशन होने के बाद आप वी आर गिविंग यू 5 to 10 मिनट्स, आप क्वेरी पूछ सकते हैं. ESI-PF, जो ESI-PF में भी दो तरीका का ESI-PF होता है. एक तो एम्प्लॉय का ESI
पीएफ और एम्प्लॉयर का ईएसआईपीएफ। एम्प्लॉय का जो रहता है वो एम्प्लॉय से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना रहता है। एम्प्लॉयर का जो ईएसआईपीएफ रहता है इक्वल टू उनका जितना एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उतना एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करके गवर्नमेंट को पे करना रहता है। इसमें बहुत सारे लोग टाइम पे एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन टाइम पे नहीं होता है, बट अभी गवर्नमेंट ने एक रूल्स किया हुआ है जिससे आप पीएफ एम्प्लॉयर का रिलेटेड है, ईएसआई और पीएफ एम्प्लॉयर का रिलेटेड है, वो आप बिफोर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न आपने पे किया आपको एक्सपेंसेस बोल के ट्रीट होता है। वही जो एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय का आपने उसका कंसर्न एक्ट में पेमेंट होना बहुत जरूरी है। फाइनेंस एक्ट 2021 ये पूरा रूल ही बना दिया। पहले कैसे इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट्स था, मेरा क्लाइंट का बहुत सारे केस अभी ट्रिब्यूनल और कमिश्नर अपील की केस चालू है। ईएसआईपीएफ पेड बिफोर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न बट नॉट पेड विद इन द ड्यू डेट ऑफ द कंसर्न एक्ट। एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो विद इन टाइम पे जाना बहुत जरूरी है। वो बहुत लिटिगेशन का केस था, बट फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2021 वो रूल में चेंज कर दिया। अभी जो भी एम्प्लॉय का सपोज आपका 1 लाख रुपए एम्प्लॉय का आपने कॉन्ट्रीब्यूशन कलेक्ट किया गवर्नमेंट को इन टाइम पे नहीं भरा, जो भी पीएफ का 15 ईएसआई का 21 जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट के अंदर आपने पे नहीं किया, वो 1 लाख के ऊपर आपको भी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा फ्रॉम 2021 फाइनेंस एक्ट। उसके लिए एम्प्लॉय का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन से आपको इन टाइम में पे करना बहुत जरूरी है। जिससे बहुत सारी कंपनी में ईएसआईपीएफ का नंबर नहीं लेता है, तो वो भी आपको ध्यान देना है। सपोज आपका प्रिस्क्राइब लिमिट क्रॉस हुआ तो आपको ईएसआईपीएफ में आपका जो भी नंबर लेके एम्प्लॉय से कलेक्ट करके आपको भी भरना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट एंड कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट एंड कैश क्रेडिट, ये जो कैश क्रेडिट आप किसके लिए लेंगे, आपका जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जो शॉर्टफॉल रहते उसके लिए बहुत सारे कंपनी कैश क्रेडिट लेता है। बहुत सारे लोग जीएसटी डिले पे करेंगे, टीडीएस पे डिले करेंगे। ये मेरा सजेशन है, आप बैंक से लोन लेके जीएसटी और टीडीएस इन टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि आप बैंक से लोन लिया तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 to 10% है। सपोज आपने जीएसटी और टीडीएस टाइम पे नहीं पे किया तो आपको 18% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ऐसा लग रहा है आपको अपना फंड शॉर्टेज हो रहा है, गवर्नमेंट का ड्यूज हम लोग इन टाइम पे नहीं पे कर रहे, तो आप सीसी लेके आपका जो भी जीएसटी है टीडीएस है वो इन टाइम पे करना बहुत जरूरी है। इससे दो फायदा होगा आपको, एक तो जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेबिट होता है एक्सपेंसेस बोल के, वही आपने टीडीएस पे किया डिले, उसका जो भी आप 18% गवर्नमेंट के लिए इंटरेस्ट भरेंगे दैट इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस। आपको दो टाइप का लॉस होता है इसमें, एक तो आपका एक्सपेंसेस बोल के भी ट्रीट नहीं होता है और आप एक्स्ट्रा भी पे कर रहे, और थर्ड थिंग आपका रेपुटेशन भी खराब हो रहा है मार्केट में, आप इन टाइम पे जीएसटी नहीं भर रहे। तो ये देखना है आपको, सपोज फंड शॉर्टेज है तो आपको सीसी लेके आपको ये कंप्लायंस करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कैश क्रेडिट लिया, जैसे टर्म लोन में क्या होता है आपका ईएमआई चालू होता है, जैसे आपने 1 करोड़ लोन लिया एवरी मंथ आपको फिक्स ईएमआई माइनस होकर 7 ईयर्स में आपका 5 to 7 ईयर में आपका लोन क्लोज हो जाता है। ये कैश क्रेडिट ऐसे लोन है ये कभी क्लोज नहीं होते जब तक आप खुद होके क्लोज करेंगे। इसके लिए अभी रिसेंटली आरबीआई ने गाइडलाइंस लेके आया हुआ है, जिस बैंक में आपने सीसी लिया हुआ है उस बैंक में आप करेंट अकाउंट अभी आपको बंद करना पड़ेगा। अभी रिसेंट आई एम रिसीविंग मेनी मैसेज फ्रॉम क्लाइंट्स, अभी बैंक में आपको करेंट अकाउंट बंद करने के लिए लगा रहे, क्योंकि आप सीसी से ही ऑपरेट करना है आपको। ये बहुत अच्छा है, मैंने सजेशन बिफोर ये आरबीआई का गाइडेंस आने से पहले मैंने बुक्स में गाइडेंस दिया हुआ है। आपका जो करेंट सीसी है उसको आपने करेंट अकाउंट जैसे यूज कर दीजिए, बट अभी बाय रूल आपको बाय डिफॉल्ट आपको आरबीआई ने गाइडेंस लेके आया, आपको जो सीसी अकाउंट है वो करेंट अकाउंट जैसे यूज करना ही है। जैसे पैसे आया आप कैश क्रेडिट में डालने का, जैसे चाहिए तब आप उसको यूज कर सकते हैं। पहले लोग क्या करने का, सिर्फ कैश क्रेडिट एक अकाउंट में यूज करने का 4 करोड़ रुपए करेंट अकाउंट में दूसरा ट्रांजेक्शन करते बैठने का। बट जब तक आप सपोज आपने 4 करोड़ एक सीसी लिया, मेरा सजेशन ऐसे है वो 4 करोड़ साल में एक बार तो आपका पैसे बैंक में होना चाहिए। 4 करोड़ तो बैंक का पैसा आपके ऊपर है,
आपका पैसे बैंक में होना मीन्स आपका डेबिट बैलेंस होना चाहिए। आपने 4,50,00,000 बैंक में भरना चाहिए एवरी ईयर, तो ये आप बिजनेस परफेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो आपने 4 करोड़ कैश क्रेडिट लिया, सिर्फ 2 करोड़ ही भरा, 2 करोड़ ऐसे ही साल भर में आउटस्टैंडिंग दिख रहे, तो आपने बिजनेस में कुछ तो गड़बड़े। एक तो आप प्रॉपर रिकवर नहीं कर रहे बिजनेस में, नहीं तो आपका प्रॉफिट नहीं है बिजनेस में, आप लोन लेके बिजनेस कर रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट लोन है, आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको डेटर्स में भी ज़्यादा ध्यान देना है। रिकवरी में बहुत सारे लोग जब कैश क्रेडिट रहता है तो डेटर्स को फॉलोअप कम होता है, उसको फोर्स नहीं होता है उधर का कस्टमर का रिकवरी में, क्योंकि आपने तो ऐसे बैंक ने दिया हुआ है यूज़ करने के लिए। ये एटीट्यूड भी आपको नहीं रखना है। जो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कैश क्रेडिट अकाउंट है उसको करेंट अकाउंट जैसे अभी तो बाई डिफ़ॉल्ट आपको करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, जैसे आपने कैश क्रेडिट बिजनेस के लिए आपने लोन लेंगे, ऐसे आप मशीनरी के लिए लोन लिया तो आपको वो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन पे आपको डेबिट करना है। इसमें भी जैसे हमने प्रोसेसिंग चार्जेस में बात किया था, ऐसे इंटरेस्ट सपोज आपने मशीनरी बुक किया अभी जुलाई मंथ में, लोन लिया 1 करोड़ रुपए, उसका जो भी इंटरेस्ट रहता है जब आपका मशीनरी आके इंस्टॉल होके उसका जो प्रोडक्शन चालू होता है तब तक आपका जो भी इंटरेस्ट है वो आपको वो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना है। इसमें भी बहुत सारे अकाउंटेंट लोग गलती करते हैं, वो लोग इंटरेस्ट जो है वो P&L को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के डेबिट होता है। दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। जैसे आपका मशीनरी के लिए आप एडवांस दिया लोन लेके, उसका जो भी इंटरेस्ट है जब तक आपका मशीनरी आके प्रोडक्शन चालू होता है तब तक वो इंटरेस्ट आपको मशीनरी में ऐड करना बहुत जरूरी है। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ये बहुत सारे अकाउंटेंट लोगों का फेवरेट हेड होता है। जो भी समझ में नहीं आया डाल दो ऑफिस एक्सपेंसेस में, डाल दो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। इससे क्या होगा, आपका जो रियल एक्सपेंसेस का जो बाइफर्केशन होना चाहिए वो नहीं होता है। उसके लिए एज ए अकाउंटेंट आपको कोई भी एक्सपेंसेस आपको 5,000 से अबव रहा तो एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से बाइफर्केशन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको जो भी एक्सपेंसेस है वो ऑफिस एक्सपेंसेस रिलेटेड रहता है तो ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल सकता है। बट बहुत सारे लोग ऑफिस एक्सपेंसेस में एक बड़ा अमाउंट मर्ज करके रखते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। इससे और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, आपका इनकम टैक्स नोटिस जब आएंगे तो ऐसे एक्सपेंसेस में ज़्यादा उनका फोकस रहता है, क्योंकि उनको बाइफर्केशन प्रॉपर दिखता नहीं है। ऑफिस एक्सपेंसेस एकदम 50 लाख 20 लाख उसमें दिखेगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में ये कुछ पर्टिकुलर हेड्स नहीं है, इसलिए कुछ तो इसमें गलत से डेबिट हुआ, इसे एक इमेज क्रिएट होता है। उसके लिए आपका सजेशन है जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं तो आप प्रॉपर उसको बाइफर्केशन करके अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है। पेट्रोल एक्सपेंसेस, जैसे पेट्रोल एक्सपेंसेस में भी बहुत सारे लोग पर्सनल पेट्रोल एक्सपेंसेस में भी बिजनेस एक्सपेंसेस में डाला हुआ रहते, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। आपको दोनों बाइफर्केशन करना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल रहा तो पर्सनल में डाल दीजिए, बिजनेस का रहा तो बिजनेस में डाल दीजिए। बहुत सारे पेट्रोल बिल आप आज लेने के बाद वो 2-3 महीने में उसका जो प्रिंट होता है वो खराब हो जाता है। उसके लिए आपका एज पर रूल के हिसाब से 6 to 8 ईयर्स आपको बुक्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी पेट्रोल बिल रहते हैं उसका एक झेरॉक्स करके आपका बिल्स प्रॉपर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो भी आपका एक्सपेंसेस होता है इसमें भी कुछ स्टेशनरी का जो स्टॉक रहती है उसके ऊपर भी आपको प्रॉपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। और उधर भी आपको जब आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कुछ मटेरियल ऑर्डर लेंगे, जैसे बाकी का जैसे आपने उसका कंपैरिजन करेंगे कोटेशन, इधर भी आपको 2-3 कोटेशंस लेके उसका कंपैरिजन करके उसका अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो सैलरी है, सैलरी इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपेंसेस ऑफ ऑल कंपनीज। सॉफ्टवेयर कंपनी में तो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी इज़ द मेन एक्सपेंसेस, बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कम रहते क्योंकि उधर मटेरियल पार्ट, मटेरियल, लेबर, देन सैलरी, देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, देन रेंट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं। बट सॉफ्टवेयर कंपनी तो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी उनका मेजर एक्सपेंसेस होता है। जब HR डिपार्टमेंट के जब आप इंटरव्यू लेंगे, राइट कैंडिडेट को राइट सैलरी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कंपनी को उसमें लॉस हो सकते हैं। चूसिंग द राइट कैंडिडेट मीन्स राइट कैंडिडेट फॉर राइट जॉब एंड राइट सैलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कंपनी सक्सेस के लिए अच्छा टीम रहना बहुत जरूरी है। अच्छा टीम आपको कब मिलेगा, जब आप प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर रखा, उधर कुछ सिस्टम्स रखा, तो उधर आपको अच्छे कैंडिडेट और अच्छे सैलरी में आपको मिल सकते हैं। जो कंपनी में आप जब
कोई भी एम्प्लॉय को लेंगे, ये हर एक डिपार्टमेंट को अप्लीकेबल नहीं होता है, जनरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अप्लीकेबल कंसिडर करके मैंने लिखा हुआ है। सपोज आपने किसी को 1 लाख रुपए का सैलरी दे रहे, तो उन्होंने मिनिमम 4 लाख रुपीज का कंपनी के लिए काम करना चाहिए, तो ये कंपनी प्रॉफिट अर्न हो सकते हैं, बाकी ओवरहेड एक्सपेंसेस बाकी सब चीज़ें आपको मैच हो सकते हैं। एज ए एम्प्लॉय आपको ये भी ध्यान देना है, कौन सा भी कंपनी रहने दीजिए, आपको एज ए एम्प्लॉय काम करते टाइम में सपोज आप एक्स अमाउंट ले रहे, कंपनी को आप एक्स प्लस 4 देना बहुत जरूरी है। सपोज आपको सैलरी 1 लाख रुपए, कंपनी को 4 लाख में महीने में कैसे वापस उसको दे सकते हैं, तो इससे क्या होगा, कंपनी का भी ग्रोथ होगा और आपका भी ग्रोथ होगा। सैलरी के ऊपर टीडीएस भी डिडक्ट करना बहुत जरूरी है। किसी का सैलरी आफ्टर डिडक्शन 5 लाख के ऊपर है, कंपलसरी टीडीएस डिडक्ट करना, ये कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2-3 साल पहले कैसे एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी था इनकम टैक्स रिटर्न भर के इनकम टैक्स पे करना, बट अभी 2-3 साल से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी के ऊपर ही डाला हुआ है। जो भी सैलरी का लोग है उनका डिक्लेरेशन लेना, उनका डिडक्शन का जो भी रिलेटेड उनका ईएसआई, इनका एलआईसी है, मेडिक्लेम है, बच्चों का स्कूल फीस है, ये सब चीज़ें आपको डिक्लेरेशन लेते टाइम में एज ए प्रूफ, हाउसिंग लोन है, हाउसिंग का इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें आपको डिक्लेरेशन लेके उनका टीडीएस प्रॉपर कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट को भरना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आपको प्रोफेशनल टैक्स भी कट करके भरना ज़रूरी है। किसी एम्प्लॉय का सैलरी मोर देन 7,500 से ज़्यादा है, लेडी एम्प्लॉय के लिए 10,000 से ज़्यादा रहे, तो आपको एवरी ईयर 2,500 प्रोफेशनल टैक्स कट करके गवर्नमेंट को भरना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी बहुत सारे लोग नॉन कंप्लायंस में रहते हैं, बट अभी डायरेक्टली जीएसटी का और आपका लिंक है, उसके लिए अभी प्रोफेशनल टैक्स का बहुत सारे लोगों को नोटिस आने को चालू हो गया। आपने प्रोफेशनल टैक्स नहीं भरा हुआ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो लिया हुआ है, इसके लिए आपको एम्प्लॉयर का भी आपको प्रोफेशनल टैक्स भरना है 2,500, और एम्प्लॉय लोगों का भी 2,500 कट करके इन टाइम पे भरना बहुत ज़रूरी है। जो सैलरी एंड वेजेस है, एज ए अकाउंटेंट आपको क्या देखना है, जो भी प्रोडक्शन लोग रहते हैं सब सैलरी, आप सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाला रहता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाला हुआ रहता है, एक्चुअली दैट इज रॉन्ग। जो भी सैलरी प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट लिंक होता है, मीन्स जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए जो डायरेक्टली रिलेटेड है सैलरी, उस वो सब सैलरी आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना है। बाकी सैलरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी है, जैसे अकाउंटेंट लोगों का सैलरी है, मार्केटिंग लोगों का सैलरी है, बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की जो संबंध नहीं है, मीन्स उनका रिलेटेड नहीं है, वो लोगों को आप सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। बिवेयर ऑफ लिटिल एक्सपेंसेस, स्मॉल लीक कैन सिंक ए ग्रेट शिप। छोटा छोटा एक्सपेंसेस से भी आपका कंपनी बहुत कॉस्ट रिडक्शन करने से आपका कंपनी का ग्रोथ होगा, आपका कंपनी का प्रॉफिट होगा। इवन घर में भी बहुत सारे आप छोटे छोटे एक्सपेंसेस बचने से भी आपका सबका शेयरिंग होके आप अच्छे तरफ से आपका कंपनी रन कर सकते। आपको मार्जिन में तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर लोग हैं, आप उनके साथ में आपको कॉम्पिटेट करना पड़ता है, बट कॉस्ट रिडक्शन के लिए ये जितना आपने दिमाग लगाया उतना कॉस्ट रिडक्शन आप प्रॉपर करके आपका बिजनेस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करके आप आपका बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं। Any queries related to today's session? We have another 5 minutes. आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं अनम्यूट करता हूँ, आप क्वेरी पूछ सकते हैं। Any queries related to today's session? एज ए अकाउंटेंट, एज ए ओनर, एज ए स्टूडेंट्स, आपका जो भी आज का सेशन का क्वेरीज आपको कुछ समझ में नहीं आया, बिकॉज टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, आपको लगा तो कुछ क्वेरीज आपको पूछना है, आप पूछ सकते। वी आर वेटिंग फॉर 1 मिनट। नहीं तो अपना ग्रुप जो है नोवर बैलेंस शीट का वो भी ओपन रहेगा अप टू 8 PM। आप उधर भी क्वेरी पूछ सकते, हम लोग आपको उधर से रिप्लाई दे देंगे। If you have any queries related to, you can ask, otherwise we'll close the session. Thank you Anjali madam for your reading and your support always with us. You are also editor of this book, Know Your Balance Sheet. You are supported a lot in writing book. Thank you very much. Thank you all participant given your valuable time. Share this link to more and more to your friends, and knowledge is today era is only knowledge era.
those who are having the knowledge they can succeed. उसके लिए जितना आपका फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए. आज के ज़माने पे जो शेयर करना है तो वो सिर्फ नॉलेज है. आपको भी जैसे आपको पॉसिबल है ये लिंक ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रेंड्स को, आपका कलीग्स को, आप बिजनेसमैन रहे तो आपका कलीग्स को, आपका अकाउंटेंट रहे तो आपका फ्रेंड्स, आप अकाउंटेंट लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए. उनके लिए भी ये नॉलेज का बेनिफिट होना चाहिए. और बाकी स्टूडेंट्स रहे तो उनके लिए भी ये आपका फ्रेंड्स में आप शेयर कर सकते हैं. Thank you very much for giving your time. Thank you, madam, once again. We'll meet next Thursday. Thank you very much. Yes, thank you, sir. Thank you. Have a good day.